Good morning, all the students. I am Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about a basic information of the chapter People as Resource. This chapter has been taken from ECO, and the most important point for this chapter we have earlier discussed. It is difference between assets and liabilities. As we have earlier discussed that the assets are the things that brings the money, और आप ऐसे कह सकते हो if any of the person is considered to be the assets, it means he is the income source of your family. Liabilities are the things where you spend the money, जहाँ पर आप अपने पैसे को खर्च करते हैं उसको हम liabilities बनाते हैं. We have also discussed about that population doesn't means the hurdle in the development of the country, but if the population or most of the population of any of the country is liability, then it is a hurdle for the country, and if it is assets, then it is not a hurdle. So for that sake we have taken an example of India and China. In the China you have seen that it's a most populated country in the world, but even then it will go in the category of developed. And see the example of India. It is the second highly populated country in the world, but it is developing country. Reason is why, because most of the people who live in a China are highly educated and technically strong persons. They are investing, means the government of the Chinese is investing a lot of money to make the people as an important resource for the country. Okay, here we are going to start that investment in the human being through the education, training, medical cares yields a return just investment in the physical capital. To make it understand, just take a simple example. Suppose that कि you start a shop. आप उस शॉप में when you start the shop you need to invest a lot of money. आपको कोई भी एक शॉप खोलना है, सपोज आपको गारमेंट की शॉप खोलना है, तो आपको क्या करना है, बहुत सारा पैसा उसमें लगाना है. पहले आप प्लेस देखेंगे, आप कोई शॉप को फाइनलाइज करेंगे, फिर आप रॉ या जो आप मटेरियल्स को सेल करेंगे उसको खरीदेंगे पहले. तो यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, उसके बाद व्हेन यू सेल दिस मटेरियल तो यू गेट द बेनिफिट. सो ऑन द सेम वे व्हेन यू इन्वेस्ट द मनी ऑन द एजुकेशन ऑफ एनी ऑफ द पर्सन, or you are giving the good training to the person, or giving a medical care to the person, so in future he or she become a assets for you and give you a return as you are getting a return from the physical capital. देखिए ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंस है. फिजिकल कैपिटल क्या है, जो आप ऐसी चीज जो आप कह सकते हो आपके पास कोई शॉप है, या किसी के पास कोई व्हीकल्स हैं, या किसी के पास फैक्ट्री है, तो दीज ऑल आर द फिजिकल कैपिटल. बट किसी के पास ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो उनको अर्न करके दे रहे हैं, तो दिस इज अ ह्यूमन कैपिटल. तो इफ यू इन्वेस्ट द मनी ऑन द ह्यूमन कैपिटल यू विल गेट द सेम रिटर्न एज यू आर गेटिंग द फ्रॉम फिजिकल कैपिटल्स. ठीक है. तो इसलिए जो कंट्रीज ऐसी होती हैं वर्ल्ड में, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए. तो डेवलपमेंट के केसेस में थ्री थिंग्स मस्ट बी कंसीडर्ड. द फर्स्ट इज प्रॉपर एजुकेशन, सेकेंड इज प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, एंड द थर्ड इज प्रॉपर हेल्थ केयर. यानी अगर आपका माइंड डेवलप्ड है और आपकी फिजिकली फिट है, then only you can just build a new ideas, and then ideas can be used for earning more. ठीक है. देखिए this can be seen directly in the form of the higher income earned because the high productivity of the more educated or a better trained person, as well as हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ द हेल्थियर पीपल. ठीक है. तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए योर पेरेंट्स इन इन्वेस्टिंग द मनी ऑन यू, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आप पर मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको प्रॉपर हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, और आपका एजुकेशन और ट्रेनिंग पे मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो व्हाट दे वांट इन रिटर्न, दे वांट द रिटर्न सेम इन रिटर्न ऑफ यू. आपको वो हाईली क्वालिफाइड करा देंगे. उसके बाद क्या है, when you start doing the job तो you become a very good assets and you start providing the returns to
टू योर पेरेंट्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे आप किसी भी ह्यूमन रिसोर्स पे रिसर्च इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उतना ही रिटर्न मिलता है। तो मैंने चाइना का एग्जांपल दिया, तो चाइना में क्या होता है कि लोगों को हाईली एजुकेटेड बनाया जाता है, उनको टेक्निकल की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो उसी हिसाब से वर्क करते हैं और वर्क करने के बाद वो उतना ही रिटर्न गवर्नमेंट को देते हैं। और जब ज़्यादा रिटर्न मिलता है और ज़्यादा इनकम होती है तो क्या हो जाता है, वो कंट्री डेवलप्ड की कैटेगरी में चली जाती है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और कवर करते हैं। देखिए, पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी द बर्डन्स ऑफ द इकोनॉमी, इट कैन बी टर्न इनटू द प्रोडक्टिव असेट्स बाय इन्वेस्टिंग द ह्यूमन कैपिटल। देखिए, जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक बर्डन हो इकोनॉमी पे। बर्डन वो जब होगी जब मैक्सिमम पॉपुलेशन आर लायबिलिटीज, यानी ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको आप बैठ के खिला रहे हो, तो वो लायबिलिटी है। अगर ज़्यादातर ऐसे हैं जो आपके लिए कमा के ला रहे हैं, असेट्स हैं, तो आपकी इकोनॉमी और ज़्यादा फ्लरिश होगी। जैसे इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टेकन एग्जांपल कि एक फैमिली है, इट कंटेन 8 मेंबर्स ऑन द फैमिलीज। ठीक है, और उन 8 में से 4 मेंबर्स ऐसे हैं जो अर्निंग करते हैं और दूसरी फैमिली 4 मेंबर्स की है। अब देखिए, पॉपुलेशन में 50-50 का डिफरेंस है दोनों में, लेकिन वहां पर असेट्स कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर असेट्स कितने हैं, 4 है। तो कौन सी फैमिली ज़्यादा डेवलप्ड होगी, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा जो फर्स्ट फैमिली है जिसमें 8 कैंडिडेट हैं और 4 इनकम अर्निंग सोर्सेस हैं, वो ज़्यादा डेवलप्ड होगी। उसके पीछे रीज़न क्या, देखो मैंने यहाँ पे बताया था ना कि पॉपुलेशन जो है वो एक बर्डन नहीं होता है। Don't consider the more population means the less development in the economy. But if the more population is liability, then you get the less development in the economy. And if it is assets, so you'll get a lot of benefits. ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, देखिए, by spending the resource on the education and health to all, एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, resource on the education, health for all, and agriculture workers in use of the modern technology, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन। ठीक है, गवर्नमेंट पॉइंट, यानी अगर आप किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करोगे प्रॉपर, तो अगर लोगों को आप ट्रेंड करेंगे अच्छे से और बहुत अच्छे से उनको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो आप और अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, द टू फॉलोइंग इज इलस्ट्रेशन हाउ द पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो किसी भी लोगों को अगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उनको उन पर पैसा इन्वेस्ट करिए। पैसा इन्वेस्ट का मतलब उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराइए और उनकी हेल्थ केयर भी अच्छी करिए और अच्छे अच्छे ट्रेनिंग दिलाइए। उसके बाद क्या होता है, वो उस एजुकेशन के बेसिस पे या हेल्थ के बेसिस पे आपको उससे डबल रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टू स्टोरी, जिसमें एक वन स्टोरी है, स्टोरी ऑफ सकल, और एक और स्टोरी है यहाँ पर, वो है स्टोरी ऑफ विलास। ये दो स्टोरीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि उन स्टोरीज में कैसे एक फैमिली का जो मेंबर है वो अपने कुछ पैसे लगा के अपने एक बच्चे को अच्छे से और एजुकेटेड करता है, जबकि दूसरे फैमिली का मेंबर अपने बच्चे को अपने साथ लगा लेता है। ठीक है, सो दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।